4,000 mothers died. Sounds just like another statistic, doesn't it? But a closer look reveals that every single death leaves behind a saga of devastation. This is the story of 4,000 families whose lives plunged into darkness within seconds. Somewhere, there's a lonely husband who searches in despair. With whom do I share my laughter and tears now? Then there is a girl so young, she's barely understood what a mother's love feels like. These are stories of thousands of parents who are haunted by just one question day and night. Was there any possible way we could have saved our young Bahu, our daughter? Today we have gathered together to see these stories because at all costs they must be changed. And more importantly, they can be changed. हम लोग अगर बात करें तो हर साल लगभग 4 से 4,500 माताओं को खो देते हैं गर्भावस्था में या जन्म के समय या जन्म के कुछ दिन बाद। और बहुत से ऐसे प्रकरण हमें हर साल देखने को मिलते हैं जिनमें माता को या शिशु को बचाया जा सकता था अगर थोड़ी सी हमने और सावधानी बरती होती। Today we will explore ways in which both the health department as well as the community can help in saving lives of mothers and infants. Our first story is that of Shalu, who was 35 years of age. In a span of 5 years, this was her 4th pregnancy. She has 2 children. The 3rd child lost his life in the womb itself. Why didn't anyone counsel this couple about family planning is an extremely important question. In her 6th month, while fetching water from the river, she felt giddy and collapsed to the ground. Women from her village revived her, but neither was the incident mentioned to Shalu's husband, nor was she taken to a doctor. After this, in her 7th month, one night she had convulsions. अचानक में ये मुट्ठी बनने लगी थी, हैं? और ये गोले पटकन लगी थी, और टेढ़ी चाप बही थी। The husband called 108 for an ambulance and took her to the district hospital. Her treatment began, but even after 18 hours of efforts, delivery was not induced and she could not be saved. On arrival at the hospital, she had various symptoms of pregnancy-induced hypertension, PIH. Her blood pressure was high, hemoglobin count was low, and there was swelling in her body. Shalu had undergone 4 antenatal care checkups at the community health center. An important question is, why weren't these common symptoms of PIH given due importance in the ANC? In the entire series of events, what roles could have been played by the ANM and ASHA is also a critical issue. हमारी अधिकतर जो मातृ मृत्यु दरें हैं वो प्रभावित होती हैं या एनीमिया एक बहुत बड़ा कॉज है, साथ में अनमैनेज्ड हाइपरटेंशन एक कॉज है और फिर पीपीएच हेमरेजिंग इज़ अनदर कॉज। ये निश्चित कहीं ना कहीं हमारा जो ANC का जो प्रोटोकॉल है उसमें जितने अच्छे से हम लोग चाहते हैं कि इनके जो चेकअप्स होने चाहिए उस तरह से नहीं हो रहे, जहाँ से हमें एक्चुअली हाई रिस्क जो केसेस हैं
आइडेंटिफाई हमें होने चाहिए और जिनका कि एक अलग प्रोटोकॉल होना चाहिए मैनेजमेंट का, वो हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे। Today, Shalu's husband is under compulsion to forego a few days' wages to care for his children. And the days that he does go for work, he entrusts his 5-year-old daughter with the responsibility of taking care of the house and her younger brother for the entire day. Perhaps no one anticipated that lapses in the ANC would lead to the death of an innocent life and complete devastation in the lives of 3 other innocent people. The children feel the absence of a mother, but the husband doesn't have an iota of savings to get married again. And then this fear: will a stepmother be able to provide the love that the children need? कोई भी माता हमको 9 महीने का समय देती है और यदि हम 9 महीने में उसकी देखभाल नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। At the time of Hina's first delivery, her hemoglobin was low, but she delivered normally. During her second pregnancy, no danger signs were noticed during her ANC visits. And this time too, she had a normal delivery at the community health center. Whether a postnatal checkup was conducted or not is uncertain, but within half an hour of the delivery, Hina developed complications at the center itself. फिर उसके बाद में कहने लगी कि मम्मी हमें घबराहट हो रही, तुम बैठी हो, तुम लेट जाओ। तो फिर सिस्टर ने बीपी नापा और फिर एकदम से बीपी नापते समय उसको फिर ब्लीडिंग होने लगी। फिर वह सीना सीना करने लगी इतने के भी में, ये मम्मी सीना में दर्द है, ये मम्मी सीना बहुत तेज, ये मम्मी मारो, ये मम्मी बचाओ। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब से कह रहे ये अंकल हमें बचाओ, ये अंकल हमें बचाओ। सुबह हाथ फिर नहीं बेटा तुम ठीक हो जाओ। तो वो कहने लगी मुझे छाती पर इधर वजन रख दो खूब जोर से। तो हम लोगों ने ऐसे मतलब छाती थोड़े ऐसे हाथ फेरा छाती पर, उसको दबाया, लेकिन दर्द बंद ही नहीं हुआ। When the bleeding persisted, Hina was referred to the district hospital. But midway through the 2-hour journey, she passed away. Within a matter of a few hours, Hina's family's joy of childbirth was overshadowed by the devastation of death. ज़्यादा नहीं बता पाएंगे हम और। ने कभी लड़ी हमारा मन ने कभी बहू है उन्हें तेज है ने अपन भी माँ जैसा प्यार देते कभी। अब उसको तो नहीं बता, अब छोटी है वो, उसको क्या बताएगा। बाकी और उसको बताएगा तो वो 3 साल की और थोड़ा सा पलक वही थी। तो उनके माँ के छोड़ दो तो 2 दिन को तो हम फोन लगाती कि मम्मी तुम तो लो आज सही ले चलो, हम तो वही अच्छे रहे। वो तो जा पसंद ही नहीं करती माँ के कभी। पूछती है सर तो बहाने बना देते हैं, कुछ भी मन बहला दिया उसका, कुछ चीज़ दिला दिया है, ऐसा कुछ भी उसके मन भटक जाए, याद ना आए। अब अपन कौन कौन दोष दे दीजिए, कौन की गलती माने बताओ। ये जो बात आई कि उसको पीपीएच हो रहा था और जिला अस्पताल करीब 1.5 घंटे की दूरी पे था, तो इसलिए ब्लड स्टोरेज यूनिट एस्टैब्लिश करना बहुत आवश्यक था। बहुत ही क्रिटिकल यदि पेशेंट होता है तो साथ में स्टाफ नर्स को भी भेजने का प्रावधान है कि एक संस्था से जब दूसरे संस्था जा रही है तो स्टाफ नर्स साथ में जाए और ऑब्स्टेटिक फर्स्ट एड उसको प्रदान करके दिया जाए। और हम लोग और इस पर प्रयास कर रहे हैं कि और इसको जो है स्ट्रेंथन करें, जिससे इस तरीके के जो दुर्भाग्यशाली प्रकरण ना हो। Surekha was an educated woman and was expecting for the first time. During the entire 9-month period, she only met the ANM or ASHA for checkups, but never a doctor. आशा से पूछने में कि क्या मरीज को कभी कोई सूजन थी या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, आशा ये नहीं बता पा रही है। सासू माँ से भी पूछा
कि क्या सूजन थी, तो सास का कहना है कि हाँ, सूजन 2-3 दिन से ही थी। हम लोग ने जब ANM से पूछा कि आप हमारा ब्लड प्रेशर लेके दिखा सकती हैं, तो उनसे ब्लड प्रेशर लेना नहीं बना। The mother-in-law said that one day in her 9th month, when she suddenly complained of back pain, an ambulance was called. इतने में ना तो सब 108 में फोन लगा दो। अब हम उनके सामने थे और कहीं लेट जाओ, सो कहीं हम नहीं लेट रहा, हमें कौन तकलीफ है काजू। 2-3 किलोमीटर 3 किलोमीटर फिर चलने लगी, हमारी सांस रन रही, हमारी सांस ही निकाल रही। उन्होंने कहा हाथ में लगा दो और मन हवा में वाकिफ करें, पसीना में भींज गई पूरी, कपड़ वपड़ सब पसीना में भींज गई। At the community health center, only a nurse was present on duty who found that Surekha's blood pressure was high. She was anemic, the body was swollen, and she was frothing so much from the mouth and nose that she was unable to lie down. She was immediately referred to the district hospital. In such a situation, was it not necessary to first stabilize her before referring her to the hospital? 4 जनों ने करो गाड़ी में बहू को, और ढाने में जो बहू को एकदम हिसकी आई है, एकदम चिल्ली आनी का ये बात जे खीप कर रही के। तो हमने कही क्या बेटा, हम जे बैठे क्या है, अब बस जो चिल्ली आनी है बस न से फंसू कर आवा। वो को हमें अंदाज नहीं पर को कब खत्म हो गई गोली में ऐसे गोदी में। During interactions with family members, they shared many important details which were not mentioned in Surekha's maternal death review. जब तक आप किसी भी मृत्यु के कारणों में नहीं जाएंगे, जब तक आप ये नहीं पता लगाएंगे कि क्या कमी रह गई और उसको कैसे सुधार करना है, कैसे उसमें आगे ऐसी चीज़ ना हो किसी अन्य माता को इससे गुजरना ना पड़े, तब तक आप सुधार कैसे करेंगे। ऐसा पाया गया है कि क्षेत्रों में कई बार जो ANMs हैं या अन्य कर्मचारी हैं, वो इन मृत्यु को इसलिए प्रतिवेदित नहीं करते हैं कि उन्हें भय होता है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनके रहते ये मृत्यु कैसे हुई। परंतु ये जानना आवश्यक है, हर मृत्यु को तो रोका नहीं जा सकता है, परंतु यदि हम कारणों को जानें तो हम उसको बेहतर कर पाएंगे। इसलिए हमें इस बात को इनकरेज करना चाहिए कि ये मृत्यु के कारण सामने आए और हम उसका समाधान ढूंढें। Surekha's last rites were barely over when her grieving father passed away. Unable to bear her loss, her husband made numerous attempts to end his life. Her young brothers and sister-in-law are still shell-shocked as to where their bhabhi has suddenly disappeared. मैं ये कहना चाहूँगा कि विभाग के बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने भिड़ करके अपने परिश्रम से, लगन से और बहुत सी जगह तो सुविधाओं के अभाव में भी उन्होंने अपनी सूझबूझ से माताओं को, शिशुओं को बचाया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रदेश की। In Suman's case, we can see how the healthcare workers anticipated the possibility of complications and made adequate preparations in advance. Suman's first delivery was a cesarean, and so she was cautious at the time of her second child and regularly got her checkups done. प्रसव पूर्व जांच के साथ साथ सोनोग्राफी में पाया गया कि उसकी आवल निचली है, जिसको हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। In her 8th month, when she started bleeding, she immediately went to the hospital and spoke to the junior doctor. एग्जामिनेशन में उसके पर एब्डोमेन में तो ऐसा लग रहा था कि टर्म साइज बेबी है, फीटल हार्ट भी ठीक थे और हेड फ्लोटिंग था उसका। उसका जब पीएस किया था तो उसमें ब्लीडिंग प्रेजेंट थी, तो मुझे ऐसा लगा कि एज शी इज़ प्रीवियस एलएससीएस विद कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, तो मुझे लगा कि आई शुड कॉल फॉर हेल्प टू माई सीनियर पर्सन। इसलिए डॉक्टर जागृति वैसे खुद सिजेरियन कर लेती हैं, लेकिन इसलिए उन्होंने मेरे से पूछा कि उनको थोड़ा इसमें, उनको भी लग रहा था कि शायद इसमें प्लेसेंटा एक्रीटा हो सकता है, और इसलिए उन्होंने पूछा। उसका हीमोग्लोबिन भी 8.4 था, और इसलिए अगर उसको सुबह एक बाउट आ चुका था तो दूसरा बाउट आना उसके लिए ख़तरनाक हो सकता था, इसलिए हम लोगों ने उसको तुरंत लेने का डिसीज़न लिया। उसका ब्लड अरेंज कराया था, उसका बीटी, सीटी, ब्लड ग्रुप और प्रीवियस कोई हिस्ट्री तो नहीं था उसको सेम रिगार्डिंग एनी ब्लीडिंग।
सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान प्लासेंटल बेड से काफ़ी ब्लीडिंग हुई। उसके जो रिलेटिव थे उनको इन्फॉर्म किया कि इसको ब्लीडिंग कैसे भी कंट्रोल नहीं हो रही है। हम प्रयास कर रहे थे कि इसकी बच्चेदानी बच जाए, क्योंकि इसका दूसरा ही बच्चा है और काफ़ी यंग पेशेंट है। तो उसके हस्बैंड को बात समझ आ गई और उसने थोड़ा सा अपने रिलेटिव से पूछा और फिर उसने तुरंत कंसेंट दे दिया। तो हमने फिर इमीडिएटली उसको हिस्टेक्टमी करने का डिसीजन लिया। The doctors anticipated a crisis and prepared for it. The husband and family wasted no time in taking the difficult decision of removing the uterus. And in this manner, everyone teamed up to successfully change this story for the better. But today, we have also felt the pain of many families who were not so fortunate. हमने 1 महीना तो पानी नहीं पियो हमारे बेटा के मरे से। 1 माह हमने पानी नहीं पियो, न रात नींद आई हमें, न हम सोए, हमें बहू के मारे से ऐसा ही बैठे रहे हम तक। हमें इतना दुख है बहू मरी, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी थी बहू। ऐसी नदी को लक्ष्मी के लाद दी सोचा बाहर निकल जाए, इसलिए हमें दुख है। In future, no one should ever have to face such a tragedy. Take charge today. Make a resolution.